This meeting is being recorded. मनोज से स्टार्ट कर दीजिए सेशन। Okay, sir. Good afternoon, everyone. I am Advocate Manoj Sharma, a practicing advocate, and I will be moderating today's session. It is my privilege to warmly welcome all participants to today's insightful webinar on ITC eligibility if supplier defaults in tax payment. In depth analysis, I would like to express my sincere gratitude to our esteemed Guru organizer, Sri Dr. Raj Chawla sir, for taking this initiative to bring together professionals for such a highly relevant and practical discussions. We are truly honored to have with us C. Ram Akshay sir, a distinguished expert in GST, customs, and DGFT matters. With over 18 years of extensive experience in indirect taxation, being a fellow chartered accountant and a law graduate, he has held significant position with reputed organizations like Reliance Industries, PwC, and EY, including leading the Indirect Tax Center of Excellence. He is also a renowned author, speaker, and thought leader on GST, having contributed to leading publication and authored books on specialized subjects such as e-commerce, taxation, and equalization levy. His vast practical exposure across multiple industries and his deep technical expertise make him an authority on this subject. I am confident that today's deliberation will be highly enriching and insightful for all of us. With this, I would like to request Sir Ram Akshay sir take this session forward. Thank you, sir. Ram sir, हेलो सर। राम साहब, यू हैव म्यूटेड सर, प्लीज अनम्यूट इन योर सेल्फ। हेलो सर। Ram sir, please unmute, sir. हेलो, अनम्यूट हो गया हाँ जी हो गया सर। म्यूट? जी सर, जी सर। सर Oh, there is a स्टार्ट करिए system issue कि whenever I am sharing my screen, it is unmuting. सर स्क्रीन इज अवेलेबल सर Screen is available. नहीं नाउ बिफोर दिस स्क्रीन वाज अवेलेबल सर Before that was available, but when I am sharing my screen, in that case, it is becoming unmute. It must be error from your side. नो सर, प्लीज सर कंटिन्यू सर। One minute. Let me start. Is it okay now? Can you see me? जी सर, ओके सर। Screen is coming. जी सर, स्क्रीन इज कमिंग सर बट प्लीज सर नॉट कमिंग सर। Yeah. डेस्कटॉप यस नाउ ओके नाउ सर। यस सर नाउ इट इज विजिबल Okay. वी कैन सी Okay. So to start with, जैसे आपने बताया, आई थिंक एवरीबडी इज कंफर्टेबल इन हिंदी. यस यस सर Yeah. So to start with, today's session is very important. You must be knowing कि nowadays there are lots of notices and demands are coming due to this suppliers default in depositing tax. This is a very critical issue nowadays. There is there is very small section
one section only, that is section 16(2)(c) of CGST Act, which talks about suppliers payment. But the demands which are coming nowadays from the department are very, very huge. So from that perspective, we need to analyze what are the issues and what are the effective solutions for this. The issues are very clear. Department is saying कि सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं किया तो हम आपको टैक्स नहीं दे सकते, ये डिपार्टमेंट का कहना है। टैक्स पेयर्स का कहना है कि सर हमने तो टैक्स ऑलरेडी दे दिया एज पर स्कीम ऑफ द जीएसटी लॉ सप्लायर को, हमें तो परचेज पे सप्लायर को टैक्स देना होता है तो हमने तो दे दिया है। सो वेयर वी आर एट फॉल्ट, समस्या ये आ रही है। तो जब everybody is on the same page, everybody is saying, taxpayer is saying कि I have made the payment of the tax, and department is saying कि you cannot avail ITC because the supplier has not deposited that tax. This is becoming very complicated issue. To sort out this issue, we need to analyze the scheme of the GST law, and simultaneously we need to analyze some judicial pronouncements of the Honorable High Courts and Supreme Courts. These issues have been dealt with by the many High Courts in India, and similarly, in some cases, Supreme Court has also given his decision with regard to this supplier's default in making payment. Many more litigations are still going on that need to be analyzed in coming days whenever decisions are pronounced by the honorable courts. But as of now, whatever judicial decisions, pronouncements are available with the in public domain, we need to analyze those decisions. Simultaneously, we have to analyze the scheme of the GST. To start with, I will briefly explain what are the scheme of the GST. And then we'll come to the judicial pronouncements, and we'll analyze one by one all the issues which are allied with this section 16(2)(c) of CGST Act. Hello? Yeah. So, first of all, we all know that as per Article 265 of the Constitution of India, tax can only be collected by authority of law. You cannot collect tax if there is no authority of law. If it is not authorized by law, you cannot collect tax. Here, we again need to check कि all the in GST law, the collection of tax has been authorized by the CGST Act and the corresponding state GST Acts. With regard to section 16(2)(c), we need to focus on section 16 of the GST Act, read with some rules and some other provisions of the GST Act. So section 16 of the GST Act talks about the ITC eligibility. I mean, किस circumstances में ITC can be availed by a purchaser. Those circumstances and conditions are mentioned in section 16, section 17, section 18, read with rules prescribed thereunder. Section 60 is specifically saying that ITC can be allowed only if purchases, it includes everything, input tax rate, capital goods, and services. If these procurements or purchases are for the purpose of business, ITC can be allowed. That is fine. But they have prescribed certain terms and conditions which says that ITC can be allowed only if you follow these sub-rules or clauses or subsections. These subsections are very, very important. One of the very important subsection is 16 subsection 2. We will not go to other sections because 16 subsection 2
incorporates 16 subsection 2 clause C, which is the subject matter of today's discussion. तो ये 16 subsection 2 clause C जो है, ये वन ऑफ द कंडीशन है, ये सारे कंडीशंस नहीं है। सबसे पहला कंडीशन मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। वो कंडीशंस हैं, सबसे पहले आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। जो भी आप परचेज करते हैं तो उसका टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट यू मस्ट पजेस इट, मतलब आपके पास ये होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि आपकी दूसरी कंडीशन है कि जो सप्लायर है वो GSTR 1 फाइल करेगा एंड जो सेल की डिटेल है दैट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द रिसिपिएंट्स, मीन्स जो परचेजर हैं उनको उसका कम्युनिकेशन आना चाहिए GSTR 2B या 2A के थ्रू। थर्ड कंडीशंस जो है, मतलब वन बाई वन कंडीशन देखें तो टोटल 6 कंडीशंस हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में, जो कि you need to fulfill before taking ITC। अब ये जो ITC लेने के कंडीशंस है, आपने सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी, आपकी 2A में भी आ गई या नहीं आई, दोनों केसेस हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सपोज 2A में नहीं आई, उस केस में क्या करेंगे? 2A में नहीं आई तो फिर एक अलग मैटर चलता है, वो कहते हैं कि आपने पे ही नहीं किया है या आप अनऑथराइज्ड ITC ले रहे हैं। कई बार 2A में आ जाती है और सप्लायर ने 3B फाइल नहीं करी तो कहते हैं कि आपने तो 2A में बोगस दिखा दिया, सॉरी 2A में आपका बोगस से एंट्री पड़ा है, सप्लायर ने 3B फाइल नहीं करी, मतलब उसने टैक्स पेमेंट नहीं किया तो आप लोग नहीं देंगे। ये दोनों कंडीशंस हैं इसमें, तो हमें तो वन बाय वन दोनों को समझना पड़ेगा यदि हम डिसीजंस में आगे जाएंगे। बट ये भी कंडीशन है कि 2A में यदि रिफ्लेक्ट नहीं होता है आपकी ITC, सप्लायर ने GSTR 1 फाइल किया आपके 2A या करेंटली 2B में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022, 2B में होना चाहिए, रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो भी ये कहते हैं कि सप्लायर ने टैक्स डिपॉजिट नहीं किया। सपोज रिफ्लेक्ट हो गया और उसने सप्लायर ने 3B फाइल नहीं किया जो कि उनको करना चाहिए था, तो भी ये कहते हैं कि टैक्स सरकार को नहीं पहुंचा है तो आपको ITC नहीं मिलेगा। अब इसमें समझने वाली बात है कि जो परचेजर है उसका क्या फॉल्ट है, क्या परचेजर को ITC लेने से डिबार किया जा सकता है लीगली? ये क्वेश्चंस ऐसा है जिसका आंसर ना सरकार ने अभी तक क्लैरिफाई किया है और कोर्ट्स इस पे डिसीजंस अपना अपना दे रहे हैं। एक और मैटर है कि जैसे ही GSTR 1 फाइल होता है या GSTR 3 भी फाइल करता है कोई भी सप्लायर, तो GSTR 3 में टेबल 4 है जो ITC से रिलेटेड है। थोड़ा सा ये ब्रीफली हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। टेबल 4 में 4A जो है वो ग्रॉस ITC कैटेगरी वाइज जो है वो दिखाता है कि क्या क्या ITC लेना चाहिए। टेबल 4B में रिवर्सल करना होता है रूल 42, 43, 17(5) या ऑल अदर ITC वगैरह है, या टेम्पररी ITC एज पर सर्कुलर ऑफ issued by CBIC सर्कुलर 177 वगैरह। 4C जो है उसमें रिक्लेम करने का भी प्रोविजन है और एक परमानेंट रिवर्सल का भी कॉलम है उसमें। अब ये सारी चीजें एज पर गाइडलाइंस एज पर रूल्स आपको दिखाना होता है ITC। आपने सब चीज दिखा दिया, जो आपने ईमानदारी से परचेज किया था वो सारा आपने दिखा दिया, लेकिन आपने क्लेम कर लिया, लेकिन सप्लायर ने सब्सिक्वेंटली अपनी 3B फाइल करनी थी, उसने कुछ गलत दिखा दिया या नहीं किया फाइल। अब इसकी सजा आपको मिलेगी जब सरकार ने कहा कि आपने जो भी ITC लेना है वो आप टेबल 4B में क्लियरली दिखाएं। आपने सबने अपना रिकंसिलिएशन करके दिखा दिया, उसके बावजूद भी ITC डिनाई कर दिया गया जस्ट बिकॉज कि वो कह रहे हैं कि सप्लायर ने 3B फाइल नहीं किया है या सप्लायर ने टैक्स पेमेंट नहीं किया। अब ये बताइए हाउ यू आर गोइंग टू ट्रैक कि आपके सप्लायर ने 3B फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा है? Honestly telling you that there are no mechanism through which you can find out that your supplier has filed 3B and paid taxes on your purchases. आपने जो परचेज किया
सप्लायर ने बेचा होगा 100 कस्टमर को, फॉर एग्जांपल आप एक कस्टमर हो उसके उन 100 में से, आपने कैसे प्रूव कर पाओगे कि आपके वाले सेल पे उसने टैक्स जमा किया? इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आज के डे में आप इसे पता कर पाओ। 8 years हैव गॉन, 8 साल में आप पता नहीं कर सकते। तो सोचिए डिपार्टमेंट को क्या राइट है कि आपसे टैक्स मांगे, क्योंकि एक कंडीशन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी में डाली गई है कि टैक्स बाय द सप्लायर मस्ट हैव बीन डिपॉजिटेड। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। और आगे एक और, मैं अभी तो 3B का टेबल 4 बताया, आगे एक और क्वेश्चन है कि अंडर द जीएसटी लॉ जो आईटीसी हम वी बीइंग अ परचेजर जो अलाउड है, दैट इज ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। जब आईटीसी सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे अलाउड है तो मैं अपने सारी कंडीशंस पूरी कर सकता हूं और सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आईटीसी ले लिया। उसके बावजूद, and since there are no mechanism to verify that supplier has deposited tax on your purchase, फिर भी आईटीसी डिनाई हुआ है। तो इससे बचने के भी सॉल्यूशंस आज मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इससे बचा जा सकता है और क्या क्या क्लैरिटी सरकार ने इस पे दिया है और कोर्ट्स ने दिया है, वो भी मैं बताऊंगा वन बाय वन। आपको स्कीम समझ में आ गया? अब चलिए, सेक्शन 16 तो आपको पढ़ना ही है आईटीसी एलिजिबिलिटी के लिए, साथ ही आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 41। आपको वो इंपॉर्टेंट सेक्शन 41 भी पढ़ना है। जो सेक्शन 41 है, दैट सेक्शन 41 इज टॉकिंग अबाउट आईटीसी ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस एंड ऑल्सो इट टॉक्स कि यदि सप्लायर ने जमा नहीं किया आईटीसी तो आपको रिस्पेक्टिव आईटीसी यू नीड टू रिवर्स। अब सप्लायर ने जब जमा नहीं किया आईटीसी तो आपको रिवर्स करना है। ये कहाँ लिखा है जी? सेक्शन 41 में। रूल 37A वगैरह भी देख सकते हैं, बट सेक्शन 41 क्लियरली सेज कि यदि सप्लायर ने जमा नहीं किया तो आपको रिवर्स करना है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग जो है रिलेशन समझिए दोनों के बीच में, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 41। सेक्शन 16 एंड सेक्शन 41 दोनों को रिलेटेड हैं, दोनों को रिलेटेड हैं। ये कैसे पता चलेगा दोनों को रिलेटेड हैं? जब आप दोनों इस सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी को जब पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि सेक्शन 40 का रेफरेंस लेना है आपको। उसमें आपको कुछ इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, वो क्लियर कट कह रहा है कि आपको सेक्शन 14 का रेफरेंस लेना है। अब जब सेक्शन 14 का रेफरेंस आप लेते हैं तो सॉरी सेक्शन 41 का जब रेफरेंस लेते हैं तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सेक्शन 41 को। ठीक है, सॉरी, सेक्शन 41 को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शन 41 हमें फॉलो करना है। जब सेक्शन 41 में साफ लिख दिया है कि यदि सप्लायर ने टैक्स पेमेंट नहीं किया और सेक्शन 16(2) में कह दिया कि पे करना है तो आपको रिवर्स करना है, तो फिर झगड़ा किस बात का? देखिए, एक तरफ मैकेनिज्म नहीं दिया वेरीफाई करने के लिए आपके कि सप्लायर ने आपके परचेज पे टैक्स जमा कराया या नहीं कराया। दूसरी तरफ आपको ये भी कहा जा रहा है कि नहीं जमा कराया तो आप रिवर्स करिए। आप ये बताइए डबल जेपरडाइज है या नहीं है? ये डबल टैक्सेशन टाइप का हो गया यहाँ पे, और इस डबल टैक्सेशन से बचने का रास्ता आज नहीं तो कल सरकार को निकालना पड़ेगा, या कोर्ट्स हो सकता है कोई डिसीजन स्पेशल लेके आए। आगे देखिए, अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज सरकार ने इशू किया था 2018 में, जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था। उसके बाद से ये सारे इश्यूज, आज तो बहुत ही कम इश्यूज हैं हमारे सामने, उस टाइम तो इतने इश्यूज डेली राइज हो रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा था क्या किया। तो उस टाइम सरकार एक इसी टाइप के इश्यूज को लेके प्रेस रिलीज इशू किया था सरकार ने। पहले गवर्नमेंट सीबीआईसी बहुत ही प्रेस रिलीज इशू किया करती थी इनिशियल डेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी।
तो उस टाइम एक प्रेस रिलीज आया था, वो 4 मई 2018 को, वो सेक्शन 16(2)(c) पे ही आया था और उन्होंने ये कहा था कि जो सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं कराया, इसको इसकी वजह से जो कस्टमर है यानी जो परचेजर है उनको पेनलाइज नहीं किया जा सकता बाई रिवर्सिंग हिज इनपुट टैक्स क्रेडिट, और मतलब देयर कैन नॉट बी ऑटोमेटिक रिवर्सल, उन्होंने ये प्रेस रिलीज में साफ लिखा है। अब जब उन्होंने प्रेस रिलीज दे दिया कि देयर कैन नॉट बी ऑटोमेटिक रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय बायर, तब फिर आप कैसे रिवर्स कर सकते हैं? बट यहाँ एक सोचने वाली बात है कि प्रेस रिलीज जो होता है इसकी कोई स्टैट्यूटरी एप्लीकेबिलिटी नहीं लिखी गई है जीएसटी एक्ट। इट कैन बी रेफर्ड बट इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बिफोर द कोर्ट। हालांकि इसका रेफरेंस लिया गया है बहुत सारी जगह पे कि ऑटोमेटिक रिवर्सल बायर से नहीं कर सकते थ्रू प्रेस रिलीज 4 मई 2028 यदि सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं किया है तो। अब अगेन इसमें इसके बाद इमीडिएटली एक और प्रेस रिलीज आया था 18 अक्टूबर 2018 को, दो रिलीज आए थे। पहला 4 मई 2018 को, जिसमें साफ लिखा गया था देयर कैन नॉट बी ऑटोमेटिक रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम द बायर ऑन नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सेलर। ये क्लैरिफाई किया था उस प्रेस रिलीज में, इसको याद रखिएगा। दूसरा प्रेस रिलीज आया जो 18 अक्टूबर को, उसमें भी साफ कहा गया था कि जीएसटीआर 2A जो है यदि उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता है कोई परचेज आपका, जैसे सेलर उस टाइम काफी प्रॉब्लम थी, अब मैं केस लॉ भी बताऊंगा, बहुत ही चर्चित केस लॉ है वो भी बताऊंगा। तो 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि उसकी वजह से भी कहते हैं कि टैक्स सप्लायर ने जमा नहीं किया है। अब सप्लायर ने 2A में जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाया, गलत दिखा दिया, गलत जीएसटीआर नंबर डाल दिया, कुछ एरर हो गया, लेकिन 3B में टैक्स सही पे कर दिया, फिर भी आपको पेनलाइज किया जा रहा था कि उसने 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो आप आईटीसी नहीं ले सकते। तो इस पे हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत ही अच्छा केस लॉ है जो आगे मैं डिस्कस करूंगा। अब ये जो प्रेस रिलीज में क्लियर कट कहा गया था कि जीएसटीआर 2A में नहीं रिफ्लेक्ट हुआ है तो कोई बात नहीं, जीएसटीआर 2A जो है एक फैसिलिटेशन है, ये इट्स नॉट अ मैंडेटरी कि आपको 2A में होना चाहिए तभी जाके आप वो परचेज का आईटीसी ले सकते हैं। ये ऐसा कोई रूल नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन इशू किया गया था इसमें, लेकिन जो डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब काफी सारे होलसेल में नोटिस आए यदि 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, तो आपके 2A में नहीं आ रहा है, आपने आईटीसी ले लिया तो आपको नोटिस आया डिपार्टमेंट से और क्लैरिफिकेशन पूछा गया है, तो ये हमें करना है। बाकी जो कंडीशंस हैं वो आपने समझ ही ली। दूसरा, आईटीसी में दो चीजें होती है, एक तो आईटीसी अवेल करने के पहले कुछ कंडीशन पूरी करनी होती है और दूसरी होती है कि आईटीसी अवेल करने के बाद कुछ कंडीशन पूरी करनी। अब जो अवेल करने के पहले जो कंडीशन पूरी करनी होती है वो तो मैंने आपको लिस्ट डाउन कर दिया। अवेल करने के बाद जो कंडीशन होती है वो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 वाली कंडीशन है, 5 वाली कंडीशन है, प्लस सेक्शन 17 में भी लिखा गया है। जैसे रिवर्सल आपको रिवर्स करना है, सपोज आपने ले लिया लेकिन आपको रिस्ट्रिक्टेड है वो आईटीसी एज पर सेक्शन 17 या किसी और प्रोविजन के थ्रू, तो आप उसको रिवर्स करेंगे, आप उसे अवेल नहीं कर सकते। जैसे रूल 42, 43 में रिवर्सल होता है इन केस आप जो एग्जाम सप्लाई भी कर रहे हैं और टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हैं। तो ये पोस्ट अवेलमेंट ऑफ आईटीसी कंडीशन है जो पूरी होनी चाहिए, सेक्शन 64 की भी कंडीशन, वो कंडीशन फुलफिल नहीं की आपने तो आपको रिवर्स करना पड़ सकता है। तो यहाँ दोनों कंडीशन हमने अब समझ लिया। एक आईटीसी अवेल करने के पहले जो कंडीशन है सेक्शन 16 की पूरी कंडीशन फुलफिल करनी है एक्सेप्ट 16, 4, 5 वगैरह की, और सेक्शन 17 में मोस्टली जो कंडीशंस आती हैं वो पोस्ट रिवर्सल ही आती हैं। जैसे 17(5) में एक्सक्लूसिव कहा गया है कि इन चीजों पे आप आईटीसी नहीं ले सकते, तो उन केसेस में सपोज आईटीसी आपने अपने बुक्स में डेबिट कर भी लिया तो उन आईटीसी को आपको रिवर्स करना पड़ेगा सब्सिक्वेंटली, जो कि मैंने टेबल जो बताया टेबल 4 ऑफ 3B में 4B ऑफ 3B में दिखाना होता है।
जब 3B फाइल करते हैं टेबल 4 का बी कॉलम में वो दिखाना पड़ता है, सेक्शन 17(5) वाली कंडीशन, रूल 42, 43 में जो रिवर्सल करना है वो सब। दीज आर पोस्ट अवेलमेंट कंडीशंस व्हिच नीड टू बी फुलफिल्ड। अगेन 3B का ये पोस्ट कंडीशन भी समझ लिया आपने, बाकी कंडीशंस भी समझ लिया। अब हम डायरेक्टली आते हैं, आपको सेक्शन 41 भी समझा दिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि समस्या कहाँ है। जैसे पहली बात आपको बताई गई उन्होंने कि आपको ये जानना बड़ा जरूरी है कि जो आपका सप्लायर है वो कंप्लायंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सप्लायर से एग्रीमेंट किया, म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट किया टू इंटर इनटू परचेज सेल ट्रांजैक्शन। आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो मतलब आपने पहले सप्लायर को चूज किया, आपने आपस में एग्रीमेंट किया। तो आपने जब एग्रीमेंट किया तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लायर ठीक है, वो कंप्लायंट है। बट आपने जब ट्रांजैक्शन किया उस डेट को वो कंप्लायंट था जीएसटी में, वो क्या था, रजिस्टर्ड भी था। रजिस्टर्ड होने के अलावा वो बाकी अपनी कंप्लायंसेस भी कर रहा था। आपको कहीं से कुछ ये पता नहीं था कि वो नॉन कंप्लायंस नहीं करेगा फ्यूचर में, या किसी को भी सर्टेनिटी नहीं है कि वो फ्यूचर में नॉन कंप्लायंस करेगा। जब वो फ्यूचर में नॉन कंप्लायंस करेगा नहीं, ये आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे ऑन द डे ऑफ ट्रांजेक्शन ये सर्टेन हो सकते हैं कि मैं जो जिस सप्लायर से ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, बाई सेल कर रहा हूँ, वो एक जेन्युइन सप्लायर है। तो ये एजम्पशन हमें लेके चलना पड़ेगा कि ऑन द डे ऑफ ट्रांजेक्शन जब आपने किया, सप्लायर वाज इन एग्जिस्टेंस, he was properly complied with, he was registered under the GST law। जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ये जेन्युइनली आप या हम कोई भी बायर है वो मान के चलता है कि हाँ, मैंने एक ड्यू डिलिजेंस किया है सप्लायर का, वो कंप्लायंट है, तो मैं एलिजिबल हूँ अवेल करने के लिए। लेकिन ये जो बातें अभी मैंने बताई ये आपकी और हमारी कंडीशंस है। डिपार्टमेंट इसके उल्टा सोचता है। अब डिपार्टमेंट जो नोटिस भेजता है उसमें ये कहता है कि जी ट्रांजैक्शन सेल परचेज तो आपने आपस में एक दूसरे को चुन के किया, हमने थोड़ी कहा कि ये सप्लायर को से आप ट्रांजैक्शन करो, इस सप्लायर से आप ट्रांजैक्शन करो, ये तो हमने नहीं कहा। तो जब आपने अपने सप्लायर को चूज किया है, आप अपना चूजे सेलेक्ट किए हुए सप्लायर से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और वो डिफॉल्ट करता है, तो इट मीन्स या तो आप दोनों के बीच में कोल्यूजन है। कोल्यूजन है मतलब आप दोनों के बीच में कोई नेक्सस है, क्योंकि जब आपने ट्रांजैक्शन किया तब वो एग्जिस्टेंस में था, सारी चीजें थी। तो इसका मतलब या तो नेक्सस है, कोई आपका उनका इंटेंशन ठीक नहीं था, तभी जाके सब्सिक्वेंटली वो डिफॉल्ट कर गया और उसने सरकार को टैक्स जमा नहीं कराया। ठीक है, ये डिपार्टमेंट का तर्क है। तो चलो कोई बात नहीं, अब ये डिपार्टमेंट का तर्क है और हमारा तर्क अलग है, लेकिन हमें तो सब चीजों को फोकस, ठीक है। अब सारी चीजों को फोकस में लेने के लिए कि मेरा जो आईटीसी है वो जेन्युइन है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए जैसे शुरू में सेक्शन 16(2) का हमने बताया कि कंडीशंस फुलफिल होती है, उसी से आपको कंक्लूजन निकलेगा कि वो ट्रांजैक्शन जो है, वो जो कंडीशंस हैं उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस वी नीड टू मेंटेन। यदि आपने वो डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस मेंटेन किए तो आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड है आपको अपने केस का केस को लड़ने का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वन बाय वन करके फिर उससे रिलेटेड पहले तो कंडीशंस बताया था, अब उसमें क्या क्या आपके पास होना चाहिए वो बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने ट्रांजैक्शन किया तो सबसे पहले आपको क्या प्रूफ एविडेंस होना चाहिए, आप दोनों के बीच बायर, आप नोट भी कर सकते हैं इसको चाहें तो, आप दोनों के बीच आप बायर हैं और सेलर हैं, तो आपके बीच में सबसे पहले क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। समझिएगा इस बात को। आप मोस्टली जो है, जो स्मॉल स्केल में जो डीलर्स हैं या जो टैक्स पेयर्स हैं, वो नॉर्मली अपने सप्लायर्स के बीच में ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, एग्रीमेंट नहीं करते, एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई, चाहे गुड्स का हो या सर्विस का। आज से आप नोट कर लें कि टू सेफगार्ड योरसेल्फ फ्रॉम द डिपार्टमेंट notices,
आप एविडेंस इकट्ठा करना शुरू कर दें। सबसे पहले जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने सप्लायर से, तो या जो ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उसके लिए आप एग्रीमेंट करिए। एक एग्रीमेंट तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। वो एग्रीमेंट करिए, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन, सारी चीजें, क्लॉजेज होते हैं एज पर लॉ, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो डालिए। उसके बाद जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका जो नॉर्मल प्रोसेस है पीओ वगैरह इशू करने का, वो करिए। एंड देन आप जो परचेज करते हैं उसका जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है वो टैक्स इनवॉइस है। टैक्स इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। तो वो जो टैक्स इनवॉइस है, आप उस टैक्स इनवॉइस को की फिजिकल कॉपी रखिए। यदि ई कॉपी, जैसे ई इनवॉइस आजकल आ रही है, तो वो रखिए, लेकिन रखिए जरूर। एंड स्लोली स्लोली एवरीथिंग विल बी इलेक्ट्रॉनिक। ये सारे ई इनवॉइसेज वगैरह सब चीज जैसे ई वे बिल। अब एक सप्लाई ऑफ गुड्स है, सपोज आपने गुड्स खरीदा, तो आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए विद द सप्लाई। देन आपके पास क्या होना चाहिए? टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। फिर आपके पास टैक्स इनवॉइस के बाद जो गुड्स आता है तो ई वे बिल भी बना होगा। यदि 50,000 से ऊपर की वैल्यू होगी तो ई वे बिल भी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? ई वे बिल के बाद आपके पास जो ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट है, वो ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट जैसे लॉरी रिसीट हो गया, बिल्टी हो गया, चालान हो गया, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। साथ ही जब डिलीवरी होती है तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी होनी चाहिए कि इस जगह पे, और प्रॉपर साइन सील स्टाम्प होना चाहिए सिक्योरिटी स्टाफ पे, जो भी रिसीव करता है। ये सारी चीजें हैं, तो गुड्स की डिलीवरी 100% मानी जाएगी कि डिलीवरी हो गई है, जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में कंडीशन है। तो ये डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिकॉर्ड में रखने पड़ेंगे टू प्रूव दैट यू हैव कंप्लाइड विद ऑल द कंडीशंस ऑफ द सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 या 16। मान ली एक ब्रॉड कंसेप्ट में आप कह सकते हैं सेक्शन 16। अब ये सारी कंडीशन, यदि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, साथ ही अब ये तो ट्रांजेक्शन हो गया। अब आपने या तो पेमेंट कुछ एडवांस में किया होगा या बाद में करेंगे, तो ये आप जो अब पेमेंट करेंगे, ये पेमेंट का प्रूफ भी होना चाहिए आपके पास। थ्रू बैंक करते हैं तो बैंक के थ्रू करिए, या जो भी आपने मोड ऑफ पेमेंट है इनका प्रूफ भी रखिए। तो एग्रीमेंट से लेके, इनवॉइस से लेके, ईवे बिल से लेके, प्रूफ ऑफ डिलीवरी से लेके, लॉरी रिसीट वगैरह लेके, ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट्स से लेकर के एंड पेमेंट तक आपके पास प्रूफ है। गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको डिपार्टमेंट आईटीसी डिनाई नहीं कर सकता, चाहे सप्लायर का डिफॉल्ट हुआ, चाहे सप्लायर ने टैक्स जमा ना किया हो, आपको आईटीसी अलाउ होगा। हाँ, हो सकता है इनिशियल स्टेजेस में डिपार्टमेंट आपको डिसअलाउ कर दे, लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपको ये आईटीसी अलाउ होगा। यदि ऑर्डर आपके अगेंस्ट आता है तो आप अपीलेट अथॉरिटी को अप्लाई करिए। वहां भी आपको न्याय नहीं मिलता है, फिर आप ट्रिब्यूनल में जाइए, वहां भी न्याय नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट जाइए, एंड देन नहीं मिलता है तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाइए। आपको न्याय मिलेगा यदि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। क्योंकि GSTR1 में एरर हो जाना, बाकी चीजों में एरर हो जाना, ये समझ में आता है, लेकिन आपके पास यदि एविडेंस नहीं है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है टू प्रूव कि यू हैव एंटर्ड इनटू अ जेन्युइन ट्रांजैक्शन, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप डिपार्टमेंट को नोटिस को काउंटर कर सकें टू अवेल आईटीसी। तो यदि डिपार्टमेंट को काउंटर करना है, उनके एलिगेशन को काउंटर करना है, तो यू मस्ट पजेस ऑल द डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस विद रिगार्ड टू योर जेन्युइन परचेज ट्रांजेक्शन। इससे आप प्रूव कर सकते हैं कि आपका ट्रांजेक्शन जेन्युइन है, बोनाफाइड है, दैट इज नॉट फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन, दैट देयर इज नो नेक्सस और कोल्यूजन। और ये आपने प्रूव कर दिया तो आपको न्याय जरूर मिलेगा, कोर्ट ऑफ लॉ से आईटीसी अलाउ होगी, चाहे सप्लायर ने डिफॉल्ट कर दिया, मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का तर्क है। सप्लायर डिफॉल्ट दो तरीके से करता है। अब आपको मैं पहले ये सारी चीजें बता देता हूँ कॉन्सेप्ट, एंड देन वील जंप इनटू अनदर एस्पेक्ट। तो ये जो कंडीशंस हैं, सप्लायर दो केस में जमा नहीं करता है टैक्स। एक तो यदि उसका फ्रॉडुलेंट इंटेंट है, यदि सप्लायर का इंटेंट ही फ्रॉडुलेंट है तो वो आपसे पैसे ले लेगा
वो जो टैक्स का पेमेंट है वो आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया, ले लेगा और वो GSTR 1 या 3 भी फाइल नहीं करेगा। ये तो समझ में आता है, फ्रॉडुलेंट इंटेंट है तो वो कभी नहीं करेगा। दूसरा केस हो सकता है कि सप्लायर ने गलती से GSTR 1 फाइल किया हो, आपका परचेज या GST नंबर में कोई एरर हो गया हो। तीसरा केस हो सकता है कि GSTR 1 GSTR 3 भी वो लेट से फाइल किया हो, या GSTR 3 भी फाइल करने के टाइम उसने कुछ गलत से फिगर डाल दिया हो, लेकिन उस केस में ये प्रूव करना बड़ा डिफिकल्ट है कि उसने आपके परचेज पे टैक्स जमा नहीं किया। तो दिस इज ए ग्रे एरिया। इस ग्रे एरिया को बड़े ही अच्छे तरीके से हाई कोर्ट के डिसीजंस आए हैं, उसमें लिखा गया है और कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे इसको डील किया जाए। वो मैं 1 to 1 एक बार कोर्ट्स का डिसीजन आपके सामने रखूंगा, फिर आपको समझ में आएगा। तो ये 3 केसेस हैं जिसके केस में जमा नहीं। अब ये आप और हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यदि किसी का बोनाफाइड परचेज है, जेन्युइन परचेज है, तो ये तो मेरा राइट है, इसको डिसअलाउ नहीं किया जा सकता ड्यू टू सप्लायर्स फॉल्ट इन फाइलिंग GSTR 3 और वट एवर रीजन्स। ये आपको अलाउ होगा, कोर्ट्स ने अलाउ किया है, एज पर द लॉ भी अलाउ होगा, जो 16(2)C की कंडीशन है। क्योंकि जो कंडीशन है कि सप्लायर ने पे किया, ये एक ऐसा कंडीशन है जो किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू आपको प्रूव नहीं कर पाएंगे कि उसने जमा किया है 3B में, आपके परचेज के अगेंस्ट टैक्स जमा किया है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, और ये इतना डिफिकल्ट है कि इसके लिए कोर्ट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे रही है कि आप इसमें कुछ सॉल्यूशन लेके आइए, कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन आप रास्ता निकालिए जो प्रूफ हो सके, इस सेक्शन 16(2)C की जो प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व किया जा सके। तो ये लेके आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट कंक्लूजन पे। तो मैंने 1 by 1 आपको बता दिया। सबसे पहला आपको क्या करना है, जो सप्लायर और परचेजर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कम से कम एक एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए आपके पास। फिर परचेज ऑर्डर, फिर टैक्स इनवॉइस की कॉपी, फिर चाहे वो ई इनवॉइस हो या फिजिकल टैक्स इनवॉइस की कॉपी हो, फिर ई वे बिल, बाकी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ गुड्स, फिर आपका प्रूफ ऑफ डिलीवरी, फिर आपका पेमेंट प्रूफ कि आपने पे किया है। अगेन ये आपने देख लिया। इसके अलावे भी एक दो चीजें हैं जो बहुत मायने रखती है कि आपकी बुक्स में वो एंट्री हुई पड़ी है, उस सप्लायर उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड लेजर आपको दिखाना होता है कई बार कोर्ट में, वो भी आप दिखाइए। आपने ये सारी चीजें लेजर, पेमेंट प्रूफ और अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री वगैरह रिस्पेक्टिव दिखा दिया ना, तो 100% मैं कहता हूं आपके फेवर में डिसीजन आ जाएगा, यदि डिपार्टमेंट ने डिसअलाउ किया हो। यदि आपका जेन्युइन परचेज है, अगेन मैं यहाँ पे ये बार बार कह रहा हूं कि इन केस ऑफ जेन्युइन परचेज, यदि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है तब तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। देन गवर्नमेंट इज बाउंड टू रिकवर दिस टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, यानी ITC आपको रिवर्स करा के आपसे टैक्स ले लेगी उसका। ठीक है जी। अब भी आपको, मुझे लगता है ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वगैरह सब समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब हम कोर्ट के डिसीजंस जो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस, वो चर्चा कर लेते हैं, जो कि बहुत ही पब्लिक डोमेन में आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन दिए। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इज, हाल ही के केस में कैलकाटा हाई कोर्ट का डिसीजन था सनक्राफ्ट एनर्जी लिमिटेड के केस में। कैलकाटा हाई कोर्ट का डिसीजन सनक्राफ्ट एनर्जी लिमिटेड के केस में था, एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के केस में था। उसमें कैलकाटा हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर यानी SSC के फेवर में डिसीजन दिया था और डिपार्टमेंट को झाड़ लगाई थी कि भाई जो मैंने अभी प्रॉब्लम बताई, यही सारी चीजें कोर्ट ने भी कहा
लिखा और उन्होंने कहा कि आप ही ने प्रेस रिलीज इश्यू किया था कि सबसे पहले ऑटोमेटिक रिवर्सल आईटीसी का बायर से नहीं करना है, आपको सप्लायर से रिकवर करना है। तो आप पहले जाइए सप्लायर से टैक्स रिकवर करिए। यानी यदि जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, ठीक है, और टू ए के में मिसमैच है या वट एवर रीजन, तो आप बायर से डायरेक्टली एट फर्स्ट इंस्टेंस रिकवर टैक्स नहीं कर सकते। आप पहले जाइए सप्लायर से रिकवर करिए, क्योंकि डिफॉल्ट किसने किया है? सप्लायर ने किया। एंड jurisprudence, according to jurisprudence also, the tax must first be recovered from that person who has defaulted in payment. और सरकार ने भी प्रेस रिलीज इशू किया था। इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए जो हमने अभी तक चर्चा की, हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि पहले आप जाइए, डिपार्टमेंट को कहा कि पहले आप सप्लायर को पकड़िए और उनसे टैक्स रिकवर करिए। लेकिन यदि कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होता है एज पर प्रेस रिलीज, जैसे कि उसका वो मिसिंग है, सप्लायर मिसिंग है, सप्लायर के पास एसेट्स नहीं है, सप्लायर जो है बिजनेस बंद कर चुका है, तो उन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आप बायर को कह सकते हैं कि भाई आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि वो उससे हम नहीं ले सकते। यदि आप आईटीसी का बेनिफिट लेते हैं तो रिवर्स करिए, नहीं तो आप पे करिए। मतलब जो भी वट एवर मैकेनिज्म है कि अल्टीमेटली रिकवरी बायर से कर सकता है यदि सप्लायर एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं और सप्लायर ट्रेसेबल ही नहीं है, और ये ट्रांजैक्शन चाहे जेन्युइन है, फ्रॉडुलेंट है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन जेन्युइन है, उस केस में भी सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि आप पहले सप्लायर से रिकवर करिए, और वहां से नहीं होता है तब आप बायर को कह सकते हैं कि भाई आपको टैक्स आईटीसी जो आपने लिया है वो रिवर्स करके हमें टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि सप्लायर ने आपके टैक्स जमा नहीं किया है। अब इसी में आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी चर्चा किया कि 2A में कई बार मिसमैचेज है, 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो भी मांग रहे हैं, 3B फाइल नहीं किया सप्लायर ने तो भी मांग रहे हैं। यहाँ पे जो केस था कि 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था, सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के केस में। यहाँ पे 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो डिपार्टमेंट ने उनसे रिकवर किया और फिर उसके अगेंस्ट जो सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है वो उन्होंने रिट फाइल किया था कलकत्ता हाई कोर्ट। अब इसके अगेंस्ट, अब देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने सनक्राफ्ट एनर्जी के फेवर में डिसीजन दिया, इसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट कहाँ चला गया जी? सुप्रीम कोर्ट। उसने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर दी। अब ध्यान रखिएगा, इसमें साफ कहा गया था कि एक्सट्रीम केसेस के केस में ही आप रिकवर कर सकते हैं, बायर से आईटीसी रिवर्स करवा सकते हैं या टैक्स रिकवर कर सकते हैं। वो एक्सट्रीम केस क्या है कि सप्लायर ट्रेसेबल ही नहीं है, मिसिंग है, एसेट्स नहीं है उसके पास। तो अब डिपार्टमेंट को बुरा लगा। अब जब डिपार्टमेंट को बुरा लगा वो सीधे चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही प्यार से इस एसएलपी को डिसमिस कर दिया। उन्होंने सिंपली ये कह दिया कि देखिए यहाँ पे जो अमाउंट इन्वॉल्व है बहुत ही लोअर साइड है, इसलिए हम इसमें इंटरफेयर ही नहीं करेंगे। समझिएगा, अब ये सनक्राफ्ट एनर्जी का केस बहुत ही डिबेटेबल है। जैसे मैंने बताया कि एक तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने फेवर में दे दिया, डिपार्टमेंट अगेंस्ट में चला गया, एसएलपी फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के खारिज कर दिया इस एसएलपी को कि भाई देखिए डिमांड बहुत ही लोअर साइड में है, इसलिए हम इस पर इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब बताइए इसका मीनिंग क्या निकलेगा? अब इस पे जितने एक्सपर्ट्स हैं वो डिवाइडेड हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि देखिए हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लोअर डिमांड होने के से इंटरफेयर करने से मना कर दिया, इसका मतलब इस डिसीजन का कोई प्रेसिडेंशियल वैल्यू नहीं है। कुछ का ये कहना है, कुछ का कहना है। अब ये जो कहते हैं कि कोई प्रेसिडेंशियल वैल्यू नहीं है, वो ये भी तर्क देते हैं कि लीव ग्रांट नहीं हुआ था और अपील डिसमिस हो गया। जो इसके अगेंस्ट में है और जो इसके फेवर में है वो कह रहे हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया, इसका मतलब उनको ठीक लगा होगा, ये उनको लगा कि चलो इस एक्सटेंट तक ये ठीक है।
तो इसको वो फेवर में लेके चलते हैं। अब ये हम सबको डिसाइड करना है कि ये फेवर में है या अगेंस्ट में है। दोनों का अपना अपना तर्क है, जो आपके फायदे में है वो यूज कर लीजिए। ये कहा था, ये 2A मिसमैच वाला केस था। अगेन अब मैं यहीं पे रुकता हूँ। एक तो कलकत्ता हाई कोर्ट का मैंने डिस्कस किया, सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, एंड इट इज अफर्म्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। मैं इसको अफर्म्ड ही मानता हूँ, क्योंकि मैं टैक्स पेयर के फेवर में उनके लिए लड़ता हूँ, तो मैं मान के चलूंगा ये हमारे फेवर में है, इसलिए मैं इसको अपने फेवर में यूज करता हूँ, सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के केस को। अब इसके पहले कलकत्ता हाई कोर्ट की रूलिंग के बाद बाकी हाई कोर्ट्स की भी जो रूलिंग है उसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया हाई कोर्ट्स के द्वारा। वन बाय वन वो भी हम चर्चा करते हैं। अभी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन था वो त्रिपुरा हाई कोर्ट का एक साहिल इंटरप्राइज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डिसीजन दिया था त्रिपुरा हाई कोर्ट ने। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने साफ साफ सेक्शन 16(2)(c) को रीड डाउन किया था। मतलब उन्होंने रीड डाउन का मतलब एक होता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित, एक होता है रीड डाउन कर देना, एक होता है फोल्ड कर देना। नॉर्मली ये मतलब किसी भी सेक्शन के अगेंस्ट जब केस होता है, रिट फाइल होती है, हाई कोर्ट्स में फैसला होता है, तो यही होता है, अपहोल्ड कर देना, रीड डाउन कर देना, बीच का मैटर है, या सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसको इनवैलिड करार देना कॉन्स्टिट्यूशनली। इसमें त्रिपुरा हाई कोर्ट ने साहिल इंटरप्राइज के केस में, जो कि जनवरी 2026 में डिसीजन आया था, इन्होंने 16(2)(c) को ना रीड डाउन किया था। इसका कहना उनका ये है कि ये मैकेनिकली अप्लाई नहीं हो सकता कि हाँ भाई आपने पे नहीं किया तो डिसअलाउ कर दो। इसका मीनिंग ये है रीड डाउन करने का मतलब, यानी केस टू केस बेसिस पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये 16(2)(c फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हर केस के फैक्ट्स को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, उन्होंने ये कहा। तो साफ साफ कोर्ट ने ये भी कह दिया कि यदि जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, बोनाफाइड ट्रांजैक्शन है, कोई फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं है, तो आप जाइए पहले डिफॉल्टिंग सप्लायर से टैक्स वसूल करिएगा। आप ये समझिए, साफ साफ कह दिया कि पहले डिफॉल्टिंग सप्लायर से जाके टैक्स वसूल करिए आप, यदि जेन्युइन ट्रांजैक्शन है तो। ये भी हमारे फेवर में है। दूसरा, कर्नाटका हाई कोर्ट ने, जो कि फरवरी में डिसीजन आया इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के केस में, उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से सेम बातें कही कि भाई सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं कराया और बोनाफाइड परचेजर है, तो आप उसको आईटीसी डिनाई नहीं कर सकते। आपको आईटीसी डिनाई करने के लिए आपको ये साबित करना होगा कि वहां पे दोनों के बीच में कोई फ्रॉड या कोल्यूजन था। आपको ऐसे अदर देन फ्रॉड केसेस में आप मैकेनिकली आईटीसी डिनाई नहीं कर सकते बायर को ड्यू टू डिफॉल्ट इन डिपॉजिट ऑफ टैक्स बाय द सेलर। किसने कहा ये? कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा। किसके केस में कहा? इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के केस में कहा। तो ये क्लियर कट है। साहिल इंटरप्राइज त्रिपुरा हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट, इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो 2026 में डिसीजन आया, क्लियर कट मैंडेट है कि भाई सप्लायर्स के फेल्यूर के लिए आप बायर को पेनलाइज नहीं कर सकते, उससे टैक्स वसूल नहीं कर सकते। आप पहले जाइए डिफॉल्टिंग सप्लायर से टैक्स वसूल करिए। अगेन मैं आता हूं, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी मैकलियोड रसेल इंडिया लिमिटेड के केस में भी यही कहा कि बायर को आप पहले साबित करने का मौका दीजिए कि ये आईटीसी जो है ये जेन्युइन नहीं है, जेन्युइन है। यदि बायर ने साबित कर दिया ये आईटीसी जेन्युइन है, तो आप आईटीसी डिनाई नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देखिए ये जो मैकेनिज्म सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में जो कंडीशंस हैं, जो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, उसमें एक सेक्शन 16(2)(a) है, क्लॉज AA जो है वो 1 जनवरी 2022 से इफेक्टिव हुआ था। उसी की वजह से ये कंडीशंस मैंडेटरी हो गया कि जब तक 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होता है तब तक आईटीसी अलाउ नहीं होगा बायर।
लेकिन 1 जनवरी 2022 के पहले ये क्लॉज नहीं था। तो लीगली ये 16(2) ना होने की वजह से एग्जिस्टेंस 1 जनवरी 2022 के पहले हम कह सकते हैं कि ये जो 2A में 2B में रिफ्लेक्ट होना, दिस इज नॉट मैंडेटरी। और इसके पीछे सीरीज ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं। इवन डिपार्टमेंट ने भी सर्कुलर इशू किया है, जो मैं सर्कुलर नंबर 199 भी इशू किया है, जो आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये आईटीसी केस में ही है कि 100% किस साल में लागू होना चाहिए। मतलब कई सारे सर्कुलर्स हैं, इतनी चीजें हैं कि 1-1.5 घंटे तो कुछ भी नहीं है डिस्कस करने का, बहुत कम पड़ जाएगा। पूरा 8 घंटे का क्लास लें तो भी कम पड़ेगा। तो मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, वो सर्कुलर्स में भी क्लैरिफाई किया है। तो देयर बाय कि 1 जनवरी 2022 के पहले ये ऑप्शनल था कि 2A में अवेलेबल हो। अब क्या हो रहा है कि जैसे सनक्राफ्ट में हुआ, 2A में मिसमैच था, तो उन्होंने कह दिया कि आपको आईटीसी डिसअलाउ होता है, आपको जमा करिए टैक्स। तो कोर्ट ने क्या कहा कि जाइए पहले डिफॉल्टिंग सप्लायर से आप लीजिए। यदि आप कहते हैं कि मिसमैच है, इसका मतलब ये है कि 16(2)(c) का नॉन कंप्लायंस हुआ है, यानी सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं किया है, तो जाइए पहले उनसे वसूलिए। सेम बाकी त्रिपुरा हाई कोर्ट ने भी कहा, कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी कहा, और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी यही कहा। ठीक। अब नेशनल प्लास्टो मोल्डिंग के केस में भी गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, और उसमें भी बड़े क्लियर शब्दों में कहा सेक्शन 16(2)(c) को लेके, और कि ये डिसीजन 16(2)(c) जो है ना, उन्होंने अब मैं एक थोड़ा खोलता हूं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस। 16(2)(c) को उन्होंने कहा, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने नेशनल प्लास्टो मोल्डिंग के केस में, कि ये ऑलरेडी अपहोल्ड किया गया है बाई सुप्रीम कोर्ट। कैसे? तो उनका कहना है कि जो सेक्शन 16(2)(c) ऑफ सीजीएसटी एक्ट में है, सिमिलर एंड ऑलमोस्ट सेम कंडीशंस दिल्ली वैट एक्ट 92G में था, सेक्शन 92G ऑफ दिल्ली वैट एक्ट में था। और उसके केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वेस्ट मर्चेंडाइजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में उसको अपहोल्ड किया था, और उसके लिए भी यही कहा था कि पहले सप्लायर से वसूल करिए। आप सप्लायर के डिफॉल्ट की वजह से कि उसने जमा नहीं किया, आप बायर को पेनलाइज नहीं कर सकते, उससे टैक्स रिकवर नहीं कर सकते। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था किसमें, क्वेस्ट मर्चेंडाइजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में। ऑल्दो ये डीवीएटी का है, बट कंडीशन सेम है। सेक्शन 92G का जो ऑफ डीवीएटी एक्ट है, सेम कंडीशन है जो आज के केस में 16(2)(c) का प्रोविजन। तो उसमें उन्होंने कहा था कि चाहे सप्लायर से वसूल करिए, और आप बायर से वसूल नहीं कर सकते हैं। इसको अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान रखिएगा। इस केस को क्वेस्ट मर्चेंडाइजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डिसीजन को जो दिल्ली हाई कोर्ट ने पास किया था, अप्रूव किया सुप्रीम कोर्ट ने। और किसमें किया? अराइज इंडिया लिमिटेड के केस में किया। तो ये माना गया कि इट इज अप्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन अराइज इंडिया, और दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। सेक्शन 16(2)(c) एंड 92G ऑफ डीवीएटी एक्ट दोनों सेम है, दोनों में सेम मैटर इशू रेज किया गया है कि सप्लायर डिफॉल्ट किया तो सप्लायर से वसूल करिए, बायर को पेनलाइज ना करिए। यदि बोनाफाइड ट्रांजैक्शन है तो ये हमेशा भी याद रखिएगा, जो भी चीजें फ्रॉडुलेंट है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो फिर आपको आईटीसी कभी अलाउ नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं बोनाफाइड ट्रांजैक्शन के लिए, तो बोनाफाइड है तो आपको अलाउ होगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अराइज इंडिया में भी अप्रूव कर दीजिए, मतलब ये कंफर्म कर दिया, साथ ही लेटर ऑन उन्होंने शांति किरण के केस में भी ये बातें कह दी। तो अराइज इंडिया, शांति किरण, इन सब में सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव कर दिया कि ये कंडीशंस कि आप पहले सप्लायर से वसूल करिए, सप्लायर के डिफॉल्ट के लिए बायर को पेनलाइज नहीं कर सकते। तो देयरफॉर ये जो बायर को अभी डिपार्टमेंट जो पेनलाइज कर रहे हैं इस 16(2)(c) के लिए, दैट इज नॉट करेक्ट। दिस इज नॉट legal, this is illegal, and therefore ITC should be allowed to the buyer. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा यदि जेन्युइन ट्रांजैक्शन है तो सप्लायर के नॉन पेमेंट के लिए बायर को पेनलाइज नहीं कर सकते बाय वे ऑफ डिनायल ऑफ आईटीसी।
और क्यों, इसका सबसे बड़ा कारण जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया, तो कोई मैकेनिज्म ही नहीं है पकड़ने का बायर के पास कि सप्लायर ने आपके इनवॉइसेस पे किया है या नहीं किया। अब ये मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का भी बता दिया, सनक्राफ्ट एनर्जी का, शांति किरण भी बता दिया कि इनोसेंट जो बायर है उनको पेनलाइज नहीं कर सकते डिफॉल्ट सेलर्स के डिफॉल्ट की वजह से। ईकॉम गिल के केस में जो मैंने आपको एविडेंसेस बताए कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ईकॉम गिल में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आपको सब्सटेंशिएट करना चाहिए कि आपका ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, आपका आईटीसी जेन्युइन है। इसके लिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। तो ये सारे प्रूफ जो मैंने आपको लिस्ट डाउन करवाए, ये सारे प्रूफ आपके पास होने चाहिए एज पर ईकॉम डील प्रॉफिट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन। अराइज इंडिया आपको बता ही दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म कर दिया था। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग, ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग जजमेंट आया है गुजरात हाई कोर्ट का, जो कि कल ही प्रोनाउंस हुआ है। मुझे लग रहा है आप लोग सब ध्यान से सुन रहे होंगे। गुजरात हाई कोर्ट का जो डिसीजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये हम सबकी आंखें खोल रहा है, जो कल ही अनाउंस हुआ है, पब्लिक प्रोनाउंस हुआ है डिसीजन, और हमारे पास अवेलेबल है। और ये डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर केस में आप इसको कोट कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक ही चीज का मतलब साफ साफ कोर्ट ने रीड डाउन तो नहीं किया, लेकिन जो उनका डिसीजन आया है बहुत ही वैलिड पॉइंट है एज पर जो हमने जितने इश्यूज एज पर स्कीम ऑफ जीएसटी जो हम आज तक सोचते आ रहे हैं वो सबको इन्होंने कहा है। रीड डाउन नहीं किया, लेकिन 16(2)(c) को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं कहा। अब देखिए, इन्होंने साफ कहा गुजरात हाई कोर्ट ने कल के डिसीजन में, जो कि केस लॉ का नाम बता देता हूं, मारुति इंटरप्राइज। क्या नाम है? मारुति इंटरप्राइज। आप नोट कर लीजिएगा, गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन है। इसमें कोर्ट ने साफ कहा कि हमें एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि आप डिनाई कर दीजिए, ये नहीं कि आप कुछ भी कर लीजिए, ऐसा नहीं है। बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। मतलब जेन्युइन ट्रांजैक्शन है तो आपको आईटीसी अलाउ करना चाहिए, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है तो आपको आईटीसी आप रिकवर कर सकते हैं। ये क्लियर कट इन्होंने कहा, और इसके लिए साफ एक यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का केस लॉ इन्होंने रेफरेंस में लिया, एक्सेल किटल एंड रिकॉल्टा रिसाइकलिंग एसपीआरएल। इसका उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस लिया और साफ साफ कहा कि एक बैलेंस अप्रोच फॉलो होना चाहिए। दूसरा इन्होंने ये कहा कि सरकार को इन्होंने एडवाइस किया कि आपको लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट या क्लैरिफिकेशन इसके रिस्पेक्ट में इशू करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। हमने काफी अभी तक जो आए हैं वो क्लियर कट नहीं एक्सप्लेन करते कि क्या करना चाहिए। तो देयरफॉर आप अमेंडमेंट लेके आइए सेक्शन 16(2)(c) में, कोई क्लैरिफिकेशन वहां पे इंसर्ट करिए, या बाय वे ऑफ सर्कुलर क्लैरिफाई करिए कि जेन्युइन ट्रांजैक्शन है तो आपको अलाउ करेंगे। आप ये डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप दीजिए कि ये आप सबमिट करिए, हम आपको अलाउ करेंगे। तो ये उन्होंने एडवाइस किया गवर्नमेंट को कि आप लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट क्लैरिफिकेशन इश्यू करिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट को एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रैकिंग मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करना चाहिए। किस लिए? जो अभी तक हमने डिस्कस किया कि फॉर वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट्स मेड बाय सप्लायर्स। हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि सप्लायर ने टैक्स जमा कराया या नहीं कराया, हम कैसे वेरीफाई करें? जीएसटीआर 2A 2B में आने का मतलब ये कतई नहीं है कि उसने सप्लायर में टैक्स जमा कराया। ये तो तभी हो सकता है जब सप्लायर में हमारे पास क्लियर कट कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो, जैसे कि 3B में साफ साफ वो इनवॉइसेस दिख रहे हो कि ये इनवॉइसेस के अगेंस्ट 3B फाइल किया है, तब तो क्लियर कट कहा जा सकता है, जो कि मैकेनिज्म प्रेजेंटली है नहीं। तो मतलब एज पर द जूरिस्प्रूडेंस हमारे पास जो एविडेंसेस होना चाहिए, ये भी एविडेंस होना चाहिए क्लियर कट कि ये टैक्स जमा कराया है। इसके लिए कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, जो कि गुजरात हाई कोर्ट ने मारुति इंटरप्राइज के केस में गवर्नमेंट को एडवाइस किया कि आप लेके आइए, क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट्स भी लाइए और ट्रैकिंग मैकेनिज्म भी लाइए कि मेरी सप्लायर किस पे टैक्स जमा कर रहा है, क्लियर कट वेरीफाई हो सके। दूसरा, उन्होंने जो डिफॉल्टिंग सप्लायर्स है
उन्होंने कहा कि आप सिमिलर कहा कि जैसे सनक्राफ्ट एनर्जी के केस में, अराइज इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने शांति किरण के केस में कहा, सेम सिमिलरली इन्होंने भी कहा कि भैया आप जाइए पहले डिफॉल्टिंग सप्लायर को पकड़िए, आप उनसे इमीडिएटली प्रॉम्प्ट एक्शन लीजिए, उनसे रिकवर करिए। आप परचेजर को पेनलाइज किए जा रहे हैं। परचेजर को पेनलाइज करने से बेहतर है, एज पर द रूल्स एंड डिसीजंस ऑफ द कोर्ट्स, आप पहले जाइए डिफॉल्टिंग सप्लायर को पकड़िए। और एक्सट्रीम केसेस में, जैसे प्रेस रिलीज में चर्चा किया हमने 2018 मई में जो आया था 4 मई को, उसके हिसाब से फिर आप एक्सट्रीम केसेस में आप बायर से ले सकते हैं। तो आप तो सबसे पहले जाके बायर को ही पेनलाइज करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। पहले आप डिफॉल्टिंग सप्लायर को पकड़िए, उनसे लीजिए। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि सेक्शन 16(2)(c) को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने रीड डाउन करने से भी मना कर दिया, बट ये बीच का रास्ता अपनाया कि पहले सप्लायर से रिकवर करिए, आप लेजिस्लेटिव चेंजेस लेके आइए, क्लैरिफिकेशन से इन्वॉल्व करिए, और ये इनके और साथ ही ट्रैकिंग मैकेनिज्म भी डेवलप करिए इस कंडीशन को, ताकि इजीली फुलफिल किया जा सके, ट्रैक किया जा सके। आगे ई-कॉम अराइज इंडिया हो गया। अब लगभग ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस मैंने आपको बता दिए, जिसका आप संज्ञान ले सकते हैं और अपने केस को डिफॉल्ट कर सकते हैं। और आपको एक और चीज मैं और बता दूं, जो मैंने 2A के बारे में बताया था, शुरू में ही कहा था कि आपको 17-18 वगैरह में जो प्रॉब्लम्स हुई थी 2A में, रिफ्लेक्ट मिसमैचेस नहीं हो रहे थे, तो उसके केस में बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भारतीय एयरटेल लिमिटेड का। इसमें भी साफ साफ कहा था, जो प्रेस रिलीज में गवर्नमेंट ने कहा था 2018 में, उसमें भी यही कहा था कि एक फैसिलिटेशन है 2A के केस में। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि 2A जो है केवल फैसिलिटेटर है, वो डिसीजन लेने में मदद करता है कि आईटीसी ले रहे हैं तो उसमें उसका हेल्प ले सकता है। और आईटीसी मैंने पहले ही बताया कि सेक्शन 41 के थ्रू सेल्फ असेसमेंट बेस पे लिया जाता है, तो आईटीसी सेल्फ असेसमेंट बेस पे है, इसीलिए 2A इज फैसिलिटेटर। आप उसकी फैसिलिटी ले सकते हैं, आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं अपने आईटीसी को एनालाइज करने में, करेक्ट आईटीसी अवेल करने। और आप उसको ये नहीं कह के बायर को आईटीसी डिसअलाउ, डिनाई नहीं कर सकते कि सप्लायर ने डिफॉल्ट किया है, टैक्स जमा नहीं कराया है, क्योंकि 2A में वो ट्रांजैक्शन अपीयर नहीं हो रहा। ये सरासर गलत है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी खारिज कर दिया। तो देयर वाइज यदि हम कंबाइन करें सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के केस को, भारतीय एयरटेल के केस को, ई-कॉम गिल कॉफी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड को जो कह रहा है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करिए आईटीसी एलिजिबिलिटी के लिए, प्लस अराइज इंडिया के केस को, प्लस डिफरेंट हाई कोर्ट्स के केस को, मारुति इंटरप्राइज के केस में कल जो प्रोनाउंस ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के डिसीजंस को, इन सब चीजों को यदि हम क्लब करें और क्लब करके हम सोचे, तो आपको ये क्लियर कट समझ में आएगा कि यदि इसका कंक्लूजन इन समरी निकालें तो यही आता है कि भाई आईटीसी अलाउ होगा यदि जेन्युइन आपका ट्रांजैक्शन है, बोनाफाइड ट्रांजैक्शन है तो अलाउ होगा। यदि बोनाफाइड ट्रांजैक्शन नहीं है, जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं है, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है, तो आपको आईटीसी डिसअलाउ, डिनाई किया जा सकता है। इवन डिपार्टमेंट तो करेगा ही, वो तो आंख बंद करके करेगा, लेकिन कोर्ट भी आपके फेवर में खड़ी नहीं होंगी यदि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने अवेल किया है वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, देयर इज नो नेक्सस, देयर इज नो कोल्यूजन, इन दैट केस ओनली आईटीसी आपको अलाउ हो सकता है। और आईटीसी अलाउ होने के लिए जैसे मैंने बताया, ये सारी कंडीशंस आपको फुलफिल होनी चाहिए। और शांति किरण केस से लेके अराइज इंडिया केस प्लस एलडी ऑटोमेटिव का भी है, वो मैं यहाँ चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा हटके है, बट ये केस लॉ जैसे, प्लस एक और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही रोशन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट का, रोशन शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी इश्यू किया है। इस पर आजकल एक और आ रहा है कि सप्लायर का जो फ्रॉडुलेंट
यदि डाउट है डिपार्टमेंट को तो उसका रजिस्ट्रेशन बैक डेट से कैंसिल कर देते हैं, 1 जुलाई 2017 से, यदि जिस डेट से रजिस्ट्रेशन लिया है उसको जीएसटी में। अब इसकी वजह से सारी आईटीसी ऐसे ही डिसअलाउ हो जाती है और वो कहते हैं कि वो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है। तो अभी जो मैंने चर्चा की फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है, तो उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि फ्रॉडुलेंट एक्चुअली है कि नहीं है। इस केस में यदि आपने रिट्रोस्पेक्टिव डेट से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके कह रहे हैं कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है, केवल डाउट के बेस पे, कोई एविडेंस नहीं है आपके पास, कंक्रीट एविडेंस की का अभाव है, और आप कह रहे हैं दैट इज नॉट करेक्ट, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यदि रिट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन किया है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का आर्बिट्ररी कैंसिल हुआ है, तो उस केस में उसको फ्रॉडुलेंट अभी हम नहीं कह सकते जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता। तो वो फ्रॉडुलेंट वाला जो मैंने वर्ड यूज किया था वो यहाँ पे सब्जेक्ट टू दैट पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो रोशन शर्मा के केस में चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आप यहाँ पे नोटिस इश्यू कर दिया है रोशन शर्मा के केस में, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सिंस सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया है तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन लेने वाली है। तो ये अभी तक है ये आईटीसी का कंडीशंस, comparing all the things, section 16, section 17, section 18, all rules plus decisions of the high courts, decisions of the honorable supreme courts, ये सारी चीजों को इकट्ठा करें और जो डॉक्यूमेंट्री पार्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको आपके पास होने चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो सब ठीक है, आपको आईटीसी अलाउ होगा यदि आपका जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। ये अभी तक का जो क्रक्स है सेक्शन 16(2)(c) पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और मुझे लगता है कि आप ऐसा करेंगे, सारे एविडेंसेस हैं, तो आपके पास इनफ सबूत है, इनफ डिसीजंस है, कोर्ट रूलिंग्स है, जिसके बेस पे आप आईटीसी जेन्युइनली ले सकते हैं। इवन आपके सप्लायर ने डिफॉल्ट किया है इन पेमेंट ऑफ टैक्स। तो इतना ही मैं यहीं पे विराम दूंगा। अब मैं आप सबकी क्वेरीज लूंगा, यदि आपको कोई क्वेरीज वगैरह है तो आप क्वेरी कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। बट इतना ध्यान रखिए, आपके पास यदि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो आपका आईटीसी विल ऑलवेज रिमेन डिस्प्यूटेड। आपका जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, चाहे कितना भी मोनाफाइड ट्रांजैक्शन है, आप मुंह से कह लीजिए, यदि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो आपको ये अलाउ नहीं हो सकता, आपको ये आईटीसी डिस्प्यूट माना जाएगा आपकी आईटीसी को, और डिपार्टमेंट आपसे डिमांड वसूल सकता है। तो ये आपको ध्यान देना है, फोकस करना है, और इसके हिसाब से आपको सारे ट्रांजैक्शंस का एविडेंसेस रखना है। ठीक है जी, तो इसी पे मैं अब आ, मैं आपसे अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। सर कुछ क्वेरी हैं, एक बार कुछ मैसेज में देख लेते हैं सर। हाँ, एक बार देख लीजिए, या आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। किसी भी मेंबर की कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए सर से। हेलो। हेलो हेलो, या प्लीज। सर, एक मेरी क्वेरी है, जो आजकल जैसे कि मोस्टली लोग सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस देते हैं, तो उस पर ना कोई साइन होते हैं और नीचे लिखा होता है द इनवॉइस सिस्टम जनरेटेड डज नॉट रिक्वायर सिग्नेचर, और उसकी कोई फिजिकल कॉपी भी नहीं आती। और तो इज दैट इज दैट फाइन अंडर द लॉ दैट विदाउट साइनिंग इनवॉइस, और इफ इनवॉइस इज मेंटेन्ड इन नहीं, पीडीएफ ओनली? देखिए सेक्शन 31 आप यदि पढ़ेंगे, जी। क्लियर कट कहा गया है कि इट मस्ट बी डिजिटली साइंड। ठीक है, ओके।
डिजिटली साइंड का मतलब उन्होंने साफ कहा है कि इट मस्ट बी साइंड एज पर आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है उसके हिसाब से साइन होना चाहिए। तो उसके हिसाब से साइन का मतलब है या तो डीएससी या बाकी ओटीपी वगैरह जो कई मैकेनिज्म है जो आजकल हम करते हैं, जी वैसे यदि साइंड है तो चलेगा। सिस्टम जनरेटेड डिजिटली साइंड यदि लिखा है तो चलेगा। अदरवाइज सिंस इट इज जनरेटेड ऑटो जनरेटेड साइन नॉट रिक्वायर्ड, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, ये डिस्प्यूटेड रहेगा। आप बेहतर है मैन्युअली साइन कराइए या डीएससी साइंड इनवॉइस लीजिए। या आप ये उसके लिए, हाँ एक और बात ध्यान रखिएगा, ये उसके लिए है जिसका ई इनवॉइस जनरेट नहीं होता है। ओके, और जो अगर ये सप्लायर को, जनरेट जिस सप्लायर को ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, ये उसके लिए है। ई इनवॉइस है तो आप इट इज वैलिड, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल कॉपी, डिजिटली साइन इज दैट, यदि आपके पास ई इनवॉइस आता है। ओके ओके, बिकॉज हमने टैली से भी बात करी तो टैली भी यही बोल रहा था कि इनवॉइसिंग है तो फिर फाइन है, लेकिन वही हमारा भी क्वेश्चन था कि इनवॉइसिंग नहीं है तो फिर साइन करना मैंडेटरी है फिर तो, यस करेक्ट। बिकॉज ई जनरली इनवॉइस लोग, है तो नो प्रॉब्लम, ई इनवॉइस नहीं है तो इट मस्ट बी साइंड एज पर आईटी एक्ट। जनरली क्लाइंट्स टैली से इनवॉइसिंग निकालते हैं और वो ऐसे ही भेज देते हैं निकाल के। नो दैट इज नॉट करेक्ट, यू शुड नॉट एक्सेप्ट इट। जी सर, एक क्वेरी और थी, अगर इससे इससे डिफरेंट है सर, अगर आप कहें तो मैं पूछ सकता हूँ। आप पूछिए पूछिए। सर एक एक मेरे हमारे क्लाइंट का काफ़ी 3-4 सालों का केस चल रहा है रिगार्डिंग द OIDR सर्विस, कि फेसबुक आयरलैंड से उन्होंने सर्विस ली थी, उस पर RCM नहीं पे किया, और इनको पता भी नहीं था कि इनके कि भाई इस पे RCM पे करते हैं, और ये डिपार्टमेंट से नोटिस आ गया। तो इस पर कोई है अभी तक कोई कोई ऐसा कोई बड़ा केस है जो चल रहा हो, और एनी एनी फ्यूचर कोई डिसीजन आने के चांसेस कि वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट? क्या करेक्ट मतलब इसमें क्वेश्चन क्या है? आपने आरसीएम जमा नहीं किया तो नहीं किया, नहीं सर, आपका क्योंकि मेन प्रॉब्लम है। हाँ नहीं, ये क्योंकि ये बहुत जेनरिक केस है, सब बहुत बहुत से लोगों की वजह से फेसबुक इंडिया के इन्होंने रेड करी थी, तो हम्म, वहां से बहुत लोगों को करीब 1400-1500 नोटिस भेजे इन्होंने। अब हाँ क्या है कि जिनके बिजनेस चल रहे हैं उन्होंने तो इनपुट जमा कर दिया विद इंटरेस्ट और इनपुट भी ले लिया, लेकिन जिनका हाँ। बिजनेस नहीं है उसके लिए तो एक तरह से लॉस ही है ये, विद इंटरेस्ट पेनल्टी अच्छा, इनपुट। आप ये आपका क्वेश्चन ये है कि आरसीएम जमा नहीं कराया तो क्या करें इसके हाँ केस में? हाँ हाँ हाँ। यार देखिए, आरसीएम के केस में वेरी सिंपल है कि आरसीएम पे करिए, आईटीसी ले लीजिए। हाँ लेकिन बिजनेस कंटिन्यूशन में नहीं है तो फिर देन इट इज। बिजनेस कंटिन्यूएशन में नहीं है तो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज ऑफ जीएसटी लॉज, आप यू शुड बी पेनलाइज्ड अंडर सेक्शन 122 हम्म या 125। हम्म। तो मुझे जो ऐसा लगता है कि इस केस में मैक्सिमम सेक्शन 125 की जनरल पेनल्टी जो है वो लग जानी चाहिए। अब वो तो लगा ही रहे हैं वो 10% और इंटरेस्ट हाँ, तो। हाँ तो जनरल पेनल्टी लग जाती है तो ठीक है, बिकॉज जमा कराना एक फॉल्ट तो है, गलती तो है, मिस्टेक है, लेकिन उस टैक्स वाला जो पार्ट है ना, टैक्स शुड नॉट बी रिकवर्ड बाय द डिपार्टमेंट, क्योंकि वो टैक्स का आईटीसी अलाउड है, एलिजिबल है। हाँ वही तो ना, लेकिन अब बिजनेस एक, कंटिन्यूशन में नहीं है तो फिर वो इनपुट हाँ का भी तो दिक्कत ये आती है। आरसीएम में ये होता है कि आपको टैक्स पे करना है एंड देन फिर इनपुट आईटीसी देना, देना है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। यहाँ पे टैक्स को गवर्नमेंट का तो लॉस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। But since there is non-compliance of the rules, you must be penalized. And मुझे जो लगता है पेनल्टी अंडर सेक्शन 125 होनी चाहिए, जनरल पेनल्टी, और कंक्लूड हो जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप इस केस को लड़िए। तो मेरा क्वेश्चन ये, कोई ऐसा कोई केस है आपकी नॉलेज में जो चल रहा अभी हो अभी? तक अभी तक ये वाइड एयर के केस में ये वाला डिसीजन नहीं आया है। अभी तक कोई नहीं आया ना हाई कोर्ट या सुप्रीम नहीं, कोर्ट? मेरे नॉलेज में नहीं। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? सर कोई कोई और क्वेरी किसी की? आई थिंक क्वेरीज तो यहाँ पे आई है, आप इसमें देखिए एक बार चैट में तो। सर एक क्वेरी है, मिस्टर राहुल है आई थिंक। इन केस ऑफ यूएन रिफंड जीएसटी नॉट डिपॉजिटेड बाय द सप्लायर, हाउ our department refunded GST to UN organization. Now department file appeal to the GST not deposited by supplier. As such, UN should refund the GST with interest to the government.
क्लैरिटी नहीं आ रही है मुझे, जहां तक लग रहा है ये यूएन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कह रहे हैं कि सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं कराया, उन्होंने रिफंड ले लिया। अगेन जी ये सिमिलर मैटर है सेक्शन 16(2)(c) वाला, ठीक है, कि सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं कराया, यूएन को रिफंड अलाउ होता है, उनको आईटीसी वगैरह अलाउ नहीं होता है, क्योंकि दे आर नॉट अ ट्रेडिंग बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। तो वो जो भी टैक्स पे करते हैं उनको रिफंड अलाउ है। तो यहाँ भी सिमिलरली कह सकते हैं कि सप्लायर ने जमा नहीं किया तो यही प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो है अप्लाई होगा इस केस में भी, कि पहले सप्लायर को पकड़िए आप यूएन से मत मांगिए, आप सप्लायर को पहले पकड़िए कि भाई आपने डिफॉल्ट किया है, उससे पहले वसूल करिए, और नहीं होता है देन आप यूएन को नोटिस इशू कर सकते हैं कि भैया इस ट्रांजेक्शन में टैक्स जमा नहीं हुआ था, तो आपने जो लिया है रिफंड वो जेन्युइन नहीं है। फिर वो यूएन वाला छोड़ेगा नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने तो पे कर दिया है अपना पैसा, यूएन वाले ने जिसने प्रोक्योरमेंट किया होगा उसने तो अपना पैसा दे दिया होगा सप्लायर को, तो सप्लायर को जब पैसा दे राइट दिया है तो सप्लायर से जाके पहले वसूल करिए ना आप इसका मतलब यूएन से आप नोटिस दे करके उनसे वसूल करिएगा रिफंड का अमाउंट, रिकलेक्ट करिएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पेनलाइज हो गया यूएन, आपके इंडिया में रह के राइट खरीद के कुछ भी चीज और उसको कोई फायदा नहीं मिला, जो कि आपके लॉ में है कि उनको रिफंड मिलेगा, आपके सप्लायर की गलती की वजह से उसने डिफॉल्ट कर दिया, आप उसको क्यों पेनलाइज करेंगे? उसने तो पे किया सप्लायर को और फिर उसका रिफंड ले लिया एज पर मैकेनिज्म ऑफ लॉ। तो यहाँ सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ठीक है। राइट सर। राइट, उन्होंने कहा कि सप्लायर इज नॉट ट्रेसेबल, यस पेड टू सप्लायर, राइट सर। सर एक क्वेश्चन है सर, जीएसटीआर 2A एंड 2B में डिफरेंस है? हाँ, में डिफरेंस, टू में डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। टू ए जो है वो डायनामिक होता है और टू बी जो है स्टैटिक होता है, मतलब टू बी में जो एंट्री आ जाती है वो फिर एक महीने में वो चेंज नहीं होती। टू ए जो है अपडेट होता रहता है, जैसे सर जैसे सप्लायर कर अमेंडमेंट करेंगे, करेक्शंस करेंगे, तो टू ए में वो रिफ्लेक्ट होता रहता है, लेकिन टू ए में टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। टू बी में एक महीने में जो एंट्री फिक्स हो गई वो फिक्स हो गई, वो वैसे ही रहेगी। टू ए में सारे अमेंडमेंट्स वगैरह अपडेशंस वगैरह अपडेट होते रहते हैं, तो देयरफॉर ये एक डायनेमिक है और एक स्टैटिक है। प्लस टू बी जो है राइट नाउ 1 जनवरी 2022 जो मैंने कहा था अपने डेलिब्रेशन में, तब से एकदम मैंडेटरी है टू बी। टू बी में यदि ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होता है तो ही आपको आईटीसी मिलेगा, नहीं होता है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा उस महीने। लेकिन टू ए जो है वो मैंडेटरी नहीं है कि टू ए को आपको रेफर करना है, मतलब टू ए जो है मैंडेटरी आपको रेफर करना नहीं है। 1 जनवरी 2022 से आपको टू बी मैंडेटरी रेफर करना है, टू बी से अधिक आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन टू ए आपको रेफर करना मैंडेटरी नहीं है फॉर अवेलिंग आईटीसी ईच एंड एवरी मंथ। ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई क्वेरी? एक और है सर, एक सेकंड सर। फॉर टेकिंग करेक्ट आईटीसी टू बी विल रेफर। बिल्कुल ठीक है, टू बी रेफर करना है हर महीने आपको राइट, टू बी रेफर करना है करेक्ट आईटीसी लेने के लिए। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। कोई और क्वेश्चन किसी का सर? मुझे तो नहीं दिख रहा है, आई थिंक इट्स ओवर। यस सर, यस। ओके सर, और थैंक्स को ये है राम अक्षर सर। ओके ठीक है, विल कंक्लूड नाउ। Thanks, here Ram Akshay sir. Very wonderful session and detailed discussion on Section 16 in simple language, High Court and Supreme Court decisions. आई थिंक सभी की क्वेरी का सर ने बड़ा अच्छे से रिप्लाई दिया। थैंक यू वेरी मच सर। हम सेशन को एंड कर लेते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।